Hello everyone, welcome to lecture number 11 on our CSAT mathematics series. Today's topic is going to be alphanumeric series. So although you can think of this topic as a combination of both the mathematics parts and the logical reasoning part, but थोड़ा mathematical part involved होता है थोड़े logics में, इसीलिए we are taking up this topic here. So you can prepare it as a part of your logical reasoning part as well. And if you look at the past year papers, every single year's 2-3 like almost 2 questions you can see from this particular topic. So there will be a series, either वो alphabet के terms में हो सकती है या तो फिर वो numbers के terms में हो सकती है, and you have to fill which one is the missing, like what is the missing term या what is the next term in this series. So कुछ because mathematical concepts लग रहे हैं या mathematical logics लगेंगे, इसीलिए we are taking up this topic here. So there are no concept as such, it will be a combination of everything, pattern recognizing, basic understanding की prime numbers, even numbers, differences, multiplication, ये सारे concepts हमारे use होने वाले हैं. So we will directly jump on to the past year question because that's how you will also get to see what is the level of questions. And there are no particular patterns as such. Whatever is the pattern, we can talk about it while we are doing the past year questions as well. So I hope you guys are ready for the questions, and let's get into the questions directly. Alright, so first things first, this particular question was asked in CSAT 2015. So there is a series that is given to you and you have to tell what is the missing number. So what is the missing number x in the series 7, x, 21, 31, 43. So most of the time जब आपको इस तरीके की कोई भी series दी हुई है, so the first thing that you should think about is let me just see and try and take a difference. तो मैं numbers के बीच में difference लेके देखती हूँ, can I get a pattern? क्या मेरे को कोई pattern दिख रहा है? So अगर हम लोग numbers को देखें, so my numbers are 7, x, 21, 31 and 43. Okay, so if I take a difference between these two, what do I get? यहाँ पे मेरा difference कितना है? 12, right? If I take a difference between these two numbers, what is my difference? 31 minus 21 is what? 10. And I don't know what is the difference here, and I also don't know what is the difference here. ठीक है? बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता. लाइक अगर मुझे 1-2 नंबर्स और पता होते, मान लो यहाँ पे 57 होता या कुछ भी, लाइक देयर इज़ नो पैटर्न हियर, आई एम जस्ट रिटन 57. सो मान लो यहाँ 57 होता तो मैं एक डिफरेंस और करके देखती और फिर शायद देख सकती थी कि 10, 12, जैसे 2 का देयर इज़ अ 2 एडेड हियर, सो मे बी अगर 2 और एडेड होता तो मुझे थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाता. बट अब हमारे पास यहाँ पे क्या चॉइस है कि वी कैन ओनली मेक अ गेस कि शायद दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट कुड हैपन कि यहाँ पे 10 है, देन 2 का डिफरेंस है 10, 12, सो शायद यहाँ पे 8 हो, राइट, एंड यहाँ पे 6 हो. ठीक है, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न है तो ठीक है, मतलब मेरी सीरीज़ इस पैटर्न को फॉलो कर रही है. सो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर इस पैटर्न से मैं इस सीरीज़ को पूरी करती हूँ तो जो x मेरे पास आएगा, डू आई गेट to see that x in my option? If it is, then we can say that is the answer, because this is the most straightforward approach या most straightforward thing that you could do. ठीक है, so अब जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, so logically I will think कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 8 का डिफरेंस होना चाहिए और इन दोनों नंबर्स 7 and x के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए. So if you add 7 plus 6, what do you get? 13, right? एंड अब जब आप 13 और 21 का डिफरेंस ले रहे हो, देन व्हाट आर यू गेटिंग? वी आर गेटिंग 8. सो शायद एग्जैक्टली यही हमारी सीरीज़ बन रही थी, क्योंकि वी आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 6, 8, 10 and 13, 10 and 12, एंड हमारे पास यहाँ पे 13 ऑप्शन में भी है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो रीअश्योरिंग कि ठीक है, दिस इज़ माई लॉजिक एंड दिस इज़ हाउ आई शुड बी डूइंग इट. सो मोस्ट कॉमन थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑफ द सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन, try and see the difference. Most of the time the first thing that should strike to you, try to see the difference, और वो जो differences आप ले रहे हो उसमें कोई आपको pattern recognize हो रहा है या नहीं. ठीक है, so that is how we've done it here. We've just taken a
डिफरेंस, क्या पैटर्न बन रहा है। एंड जब हमने ये पैटर्न को कंटिन्यू किया तो हमने देखा कि 13 परफेक्टली फिट बैठ रहा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट इज हाउ आवर आंसर हियर इज 13, विच इज ऑप्शन सी। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। All right, let's move on to the another question. Okay, so consider the sequence given below. So there are lots of dates that are given to you, multiple dates given to you, and what is asked, what is the next term of the series. Again, so different dates आपको दिए हुए हैं, आपको इसका next term क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो, so let's begin. So this is 4/12/95. What is 4/12/95? 4th December 1995, right? This is my first term. Okay, what is my second term? 1/1/96. What is this? 1st January 1996. 1st January 1996. Okay, what is my third term? 29th of January 1996. Third term is 29th of January 1996. Okay, and what is the fourth term? This is fourth term. Fourth term is 26th of second month, which is February, 26th February 1996. एंड हमसे अब पूछा गया है कि व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट टर्म विच इज़ द फिफ्थ टर्म। ओके, सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न दैट आई कैन सी कि मेरी जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, राइट। 95, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू सी again most common logic, just try and see the difference. So here I will like to know what is the difference between the days that are there between these dates. तो मैं इन dates के बीच में difference देखना चाहती हूँ, ठीक है। So 4th December, December is the 31st, 31 days होते हैं December में, right? And if you are like me who always forget which month has 30 and which month has 31, I always do this January, February. I hope you also remember that. Okay, so December में there are 31 days. Okay, so 4th December से 1st January के बीच में कितने दिन होंगे? So 27 days तो इस month के, right? सो 26 डेज में हम 30th दिसंबर पे पहुँचे, फिर एक और डे आया 31st दिसंबर, तो हमारे पास 27 डेज हो गए दिसंबर के, एंड देर इज़ 1 डे फॉर जनवरी। सो बेसिकली इन दोनों जो डेट्स हैं इसके बीच में कितने डेज का फ़र्क है? 28 डेज, राइट, 28 डेज। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर विच मंथ हैज़ हाउ मैनी डेज एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सो अब मैं जो दूसरे दो नंबर्स हैं उनके बीच का गैप देखूं, सो 1st जनवरी से 29th जनवरी के बीच में कितने दिन है? इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 28 डेज। ओके, एंड देन जनवरी इज़ ऑल्सो अ 31 days month, 31 days month, ठीक है। तो जनवरी से आप फेब्रवरी में जा रहे हो, तो हाउ मेनी डेज आर देयर? सो 26 डेज ऑफ फेब्रवरी एंड 2 days फॉर जनवरी, सो 30th जनवरी एंड 31st जनवरी। सो यहाँ पे भी 28 डेज होने चाहिए, राइट। सो इट्स प्रिटी क्लियर दैट नेक्स्ट डेट शुड ऑल्सो बी 28 days अवे, 28 days अवे। अब यहाँ पे so 28 days away. Okay, so here what we are talking about, here we are talking about February. मुझे पता करना है कि February में कितने दिन होंगे और फिर बाकी जो बचे हुए दिन होंगे वो मैं मार्च में ऐड करूँगी। So अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, February में कितने दिन होते हैं? तो usually it is 28, but that is for a normal year, right? So whenever there is a leap year, कोई भी जब leap year आपके पास है, leap year में there are 29 days, 29 days. So first we have to see whether 1996 is a leap year or not. So yes, it is divisible by 4. So whichever year is divisible by 4, it's a leap year. So 1996 अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, so 1996 को
अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, इट इज़ एंटायरली डिविजिबल बाय 4, हेंस इट इज़ अ लीप ईयर. सो लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे? 29 डेज. तो क्या होगा? 26 फरवरी से हमने स्टार्ट किया, 27, 28 एंड 29, 3 डेज हियर, 3 डेज इन फरवरी, एंड हमें 28 डेज आगे बढ़ना है तो बाकी के 25 डेज इन मार्च. ठीक है, सो 25 डेज इन मार्च. सो मार्च के 25 डेज अगर आप और ऐड कर लोगे तो व्हाट इज़ योर डेट? 25th ऑफ मार्च ऑफ विच ईयर? 1996. ठीक है, सो माई फाइनल नंबर इज 25th ऑफ मार्च 1996. So the only thing that I had to be very careful about is what is the number of days in February. So यहाँ पे leap year and a normal year का concept important है. ठीक है, and every single number की जो series है उनके बीच में 28 days का difference था. So that is what we have followed here as well. ठीक है, so you have to do, अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अब यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं? आपने कौन सा दिन ऐड कर दिया, कौन सा दिन सब्ट्रैक्ट कर दिया, 31 डेज किस में हैं, 30 डेज किस में, ये छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. ऑल राइट, सो इज़ दिस क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, एंड द आंसर इज़ 25th ऑफ मार्च 1996. ऑल राइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन to the next problem. Okay, all right, so again similar question. There is a series that is there and you have to fill what is the next term in that series. ठीक है, okay, so मैं एक बारी series लिख लेती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि what is going to happen. So 4, 196, 16, 144, 36, 100. Okay, I should have, okay, this is 64 and then what is the next term? X. ठीक है, okay, so एक चीज़ अगर मैं नोटिस करूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे नंबर जो हैं, मेरे नंबर्स अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे? These numbers are going down. So this was 196, this one was 144, this one was 100 and this is going again down 64. ठीक है, और जो मेरे दूसरे set of numbers हैं they are going up. ठीक है, they are going up. So what is my next set of numbers? This set of numbers they are going up. ठीक है, and if you know, if you remember what are the basics, square and square of numbers, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो ये सारे numbers बहुत ही common और ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कहीं देखे हुए हैं. ठीक है, सो सिमिलर तरीके का पैटर्न है. अब यहाँ पे मैं अगर डिफरेंस निकालने बैठ जाऊँ, द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ? मैं अगर इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखूँ, देन आई गेट टू सी दैट दिस इज़ नथिंग बट 2 raised to the power 2, right? This is nothing but 4 raised to the power 2. This is nothing but 6 raised to the power 2. ठीक है, okay, so this one was not a part of this one. Okay, so ये जो हमारा 64 नंबर है, this is a part of the green series which I have here. Okay, yeah, so this is nothing but square of 8 and उसके बाद क्या होना चाहिए? So 4, 2 squared, 4 squared, 6 squared and 8 squared. Okay, अब बाकी जगह क्या हो रहा है? बाकी जगह this is what, if I write it like this is nothing but 13 square, right? So it's useful अगर आप कुछ एटलीस्ट कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद हो, क्योंकि वो नंबर्स फिर आप क्विकली रिकग्नाइज कर पाओगे. अगर इस नंबर को देखो, दिस इज़ 12 स्क्वायर्ड. अगर इस नंबर को आप देख रहे हो, ओके सॉरी, दिस इज़ 14, राइट, दिस इज़ 14 स्क्वायर्ड. So while I was saying you guys should remember it, I think I also should remember it. Okay, this is 14 squared, this is 12 squared, this is what, 10 squared,
एंड उसके बाद हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पैटर्न हम लोग क्या देख रहे हैं, एवरी ऑल्टरनेट टर्म यहाँ पे 2 2 के डिफरेंस से हमारे स्क्वायर्स बढ़ रहे हैं, सो 2 4 6 8, ठीक है। एंड जो हमारी दूसरी सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, 2 2 के डिफरेंस से स्क्वायर्स कम हो रहे हैं, सो 14 स्क्वायर, 12 स्क्वायर्ड, 10 स्क्वायर्ड, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 स्क्वायर्ड, राइट। एंड जो हमारा x टर्म है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस येलो सीरीज दैट वी हैव, राइट। So 14 squared, 12 squared, 10 squared and 8 squared. And what is 8 square? 64, right? So this is going to be my answer, ठीक है। So कई बार हो सकता है कि 2 सीरीज एक साथ चल रही हो, कई बार हो सकता है कि 3 सीरीज एक साथ चल रही हो। So that became visible to us because we saw कि इन दोनों ये नंबर्स हैं, इसमें डायरेक्टली कोई पैटर्न नहीं है, और अगर मैं डिफरेंस भी निकालूंगी तो बहुत बड़े डिफरेंस होंगे, ठीक है। So that is how you will solve this part, okay? So I hope this is clear. All right, so moving on. Okay, again this was asked in CSAT 2019, quite recently. What is x in the sequence that is given to us? All right, so अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, ये सीरीज में सारे नंबर्स आपस में काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं, सो दिस इज़ वन साइन कि हाँ ठीक है, कोई एक ही सीरीज होगी। अगर ये नंबर्स आपस में बहुत दूर दूर होते, कोई पैटर्न नहीं दिखता, देयर कुड हैव बीन 2 सीरीज। सो राइट नाउ व्हाट इज द सीरीज, 132, 129, 124, 117, 106 and 93. All the numbers are going down, decreasing हैं। तो एक बारी सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या है कि मैं इनके बीच का डिफरेंस चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देख रही हूँ, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, -3, राइट। सो 3 मैंने कम किया। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देख रही हूँ तो व्हाट कैन आई सी, -5। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑड नंबर्स जो हैं दैट कुड बी वन पैटर्न। अब जब मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो क्या आया, दिस इज 3 and 4, -7, राइट। ओके, अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो क्या आता है, दिस इज 4 and 7, ओके, 7 and 4 11, सो दिस इज -11, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 3, अगर ये ऑड नंबर की सीरीज होती, सो 3 5 7 9, इस तरीके से कहानी आगे बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 इज़ नॉट देयर, सो देयर इज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन। ओके, सो लेट्स डू दिस डिफरेंस ऑल्सो। सो इफ़ यू टेक दिस डिफरेंस, सो दिस इज 7 and 6 13, सो -13, ओके। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, -3 5 7 11 13। तो इनके जब आप नंबर्स देख रहे हो, तो what is the pattern that you could see? What kind of numbers are these? So these are what? Prime numbers. सारे के सारे prime numbers हैं. So 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद क्या आना चाहिए? 14 is not prime, 15 is not prime, 16 is not prime. So what is the next prime number in this series? Next prime number is 17, right? So मुझे क्या करना चाहिए? I should subtract, I should reduce 17 from this number 93, right? So if you subtract 17 from this, what do you get? So 3 and then 14 and then 76, right? So if I, yeah, okay. So if I subtract 17 from this, what do I get? 76. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो गया वो हो गया -17, राइट। सो दैट इज द सीरीज दैट इज गोइंग ऑन। तो हमारे प्राइम नंबर्स की सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो आई टुक अ डिफरेंस ऑफ 17 एंड आई गॉट 76 एंड दैट इज व्हाट इज माय आंसर, ठीक है। सो दिस सी पोर्शन। सो अगर कोई जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हमारे पास सिर्फ 2 डिफरेंस थे, तो वहाँ पे हम बड़ी सीरीज़ क्या होगी वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे। ये सीरीज़ आप मान सकते थे अगर आपको सिर्फ यहाँ तक के नंबर्स दिए होते, सिर्फ यहाँ तक के नंबर्स, तो हो सकता था कि आप इसको एक ऑड नंबर वाली सीरीज़ भी मान सकते हो, आप इसको प्राइम नंबर वाली सीरीज़ भी मान सकते हो, बट दे गेव अस मोर नंबर्स सो दैट वी कुड रिकग्नाइज कि दिस इज़ एक्चुअली अ प्राइम नंबर सीरीज़, ठीक है। सो इसीलिए जब कम नंबर्स हो तो हो सकता है कि आपकी कोई सीरीज़ कुछ और हो बट आप कुछ और समझ रहे हो, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉमन टू हैव मल्टीपल सीरीज इन योर हेड, लाइक दिस कुड बी प्राइम एंड दिस कुड बी ऑड एज वेल।
अगर आपको सिर्फ यहीं तक के नंबर्स दिए हुए हों, ठीक है। सो इन दैट केस देन यू हैव टू डू अ ट्रायल एंड एरर, कि अगर आपने जो लॉजिक सोचा है उससे अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, जो आप लॉजिक सोच रहे हो वो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ और फिर आप लॉजिक सोचो कि उस लॉजिक से या उस सीरीज से आपका आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. Okay, let's move on to another problem. Okay, so this is all these questions that we've done till now, they are all numerical based problems. Numbers हैं उसमें. अब यहाँ पे हमारे पास alphabets आ गए. So this is a part of logical reasoning. So आपको pattern recognize करना है, ठीक है. So this was asked in CSAT 2019. अब इस तरीके के problems में सबसे पहले what you should do. अब पहले तो सबसे पहला स्टेप, पहले क्वेश्चन क्या है, ये एक कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलो सम अरेंजमेंट. सो ये काफ़ी सारे नंबर्स हैं, ABC इस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं, इनका अरेंजमेंट दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि व्हाट शुड अपीयर इन दीज गैप्स. सो यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 गैप्स जो दिए हैं, यहाँ पे मैं कौन से अल्फ़ाबेट्स को पुट करूँ, ठीक है. दिस इज़ माई क्वेश्चन. ओके, सो इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ फर्स्ट सी के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द पैटर्न, ठीक है. सो मैंने देखा कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं. सो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो आई हैव 15 अल्फ़ाबेट्स. अब हमें ये काउंट क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चांसेस होंगे कि मान लो पेयर्स होंगे, 5 लेटर्स के पेयर्स हैं, ठीक है. हो सकता है 3 लेटर्स के 5 पेयर्स हों. सो 3 3 3 3 3. सो इस तरीके से आपकी कहानी आगे बढ़ती है. अब जैसे मान लो इंस्टेड ऑफ 15 देयर वुड हैव बीन 16 अल्फ़ाबेट्स. सो मोस्ट कॉमन जहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि वो ये हो सकता है कि 8 के दो पेयर्स हों, बट 8 इज़ अ बिग नंबर टू फाइंड द पैटर्न. तो आप इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर सकते हो. सो और ब्रेक डाउन किया तो हो सकता है कि 4 के 4 जो है हमारे पास पेयर, 4 को पेयर्स नहीं बोलेंगे बट 4 हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स हों, ठीक है. सो एंड अगर इसको और मैं बाइफरकेट करूं तो 2 के 8 पेयर्स, एंड अगेन 2 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि एक अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे जो जिनका पैटर्न जो है एक तरीके से रिपीट कर रहा होगा. इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द नंबर्स. सो हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 5 के 3 सेट्स बन सकते हैं या 3 के 5 सेट्स बन सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किस तरीके से स्टार्ट करो, जो बड़ी चीज़ आपको लग रही है वहाँ से स्टार्ट करो, एंड देन मूव. अगर इसमें कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है देन मूव ऑन टू द स्मॉलर वन, ठीक है. सो अब यहाँ पे हम लोग अभी दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर. इवन आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क आउट और नॉट. सो आपको ट्रायल इसी तरीके से करना है कि एक अप्रोप्रिएट लेंथ हो, बहुत बड़ी भी लेंथ नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए. सो बिगिन विद अप्रोप्रिएट लेंथ. सो वी बिगैन, हम शुरू करते हैं 5 के 3 सेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो हमने क्या देखा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब मैं 5 के डिफरेंट पेयर्स जो बन रहे हैं एक बारी हम उनको अंडरलाइन करते हैं. सो 1 2 3 4 5. सो यहाँ तक मेरे पास एक सेट बन गया, राइट. एंड देन 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरे पास एक सेट बन गया, और मेरे पास एक सेट बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक. अगर मैं 5 के पेयर्स लूँ तो मेरे पास ये 3 सेट्स बनते हैं, ठीक है. सो मैं क्या देख रही हूँ, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. ओके, यू नो इट विल बी गुड इफ आई राइट these here. Okay, let me write it somewhere. Okay, so what are the numbers? C, and then there is a dash, and then A, and then C, and then C. So this is my first set, and then what is my another set? A, there is a difference, like there is a gap, and then there is a again. So this is my another set, and what is my final set? There is a blank here, B, C, blank, and B, ठीक है.
अगर मैं मान लूँ कि ये जो पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मैं क्या देखती हूँ, अगर हम लोग इसके आखिरी 2 नंबर्स को देखें, अगर मैं इनके आखिरी 2 नंबर्स को देख रही हूँ, यहाँ पे क्या क्या है, CC, यहाँ पे क्या है, AA, ठीक है, और यहाँ पे देयर इज़ अ ब्लैंक, ठीक है। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जो आखिरी में लेटर है वही फ्रंट में लेटर है, जो आखिरी में लेटर है वही फ्रंट में लेटर है। सो जो आखिरी में लेटर है वही फ्रंट में लेटर होगा। दिस कुड बी वन सीरीज, हो सकता है। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ और लिख देती हूँ कि जो आखिरी में लेटर है वही फ्रंट में लेटर है, आखिरी में है फ्रंट में है, आखिरी में है फ्रंट में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, आखिरी में जो लेटर है वो पिछले उसके प्रीवियस पोजीशन पे भी वही लेटर है। सो CC, AA एंड देन व्हाट शुड हैपन हियर, BB, ठीक है। अब मेरा ये पूरा जो सेट है कंप्लीट हो गया है। इसका पैटर्न क्या है, BB, C एंड देन BB, राइट। सो और यहाँ पे AA है, तो मतलब यहाँ पे कोई एक लेटर आना चाहिए विच इज़ अपार्ट फ्रॉम A। सो यहाँ पे A तो नहीं आएगा, यहाँ पे या तो B आएगा या तो फिर C आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन हो गया। और फिर सेम पैटर्न अगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, एंड में CC, स्टार्टिंग में भी CC होना चाहिए, CC, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वहाँ पे A है, इसके सेंटर में क्या आएगा हमें नहीं पता, इसके सेंटर में क्या है, C है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट देर इज A, देन देर इज B एंड देन देर इज C। सो इस तरीके से होना चाहिए। सो हियर व्हाट आई कुड थिंक कि यहाँ पे हमें B लिख देना चाहिए। सो पैटर्न क्या हो रहा है कि सेंटर में A, B, C एंड देन देर आर CC, CC, AA, AA एंड BB, BB। सो ये तो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया है, परफेक्ट पैटर्न। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ ट्रायल एंड एरर। हमने ट्रायल एरर करके देखा, हमें लगा कि बिल्कुल परफेक्टली हमारा पैटर्न जो है फिट हो गया है, ठीक है। सो ऑल राइट। सो हमने क्या क्या फिल किया, हमने यहाँ पे फिल किया C फर्स्ट गैप में, दूसरे गैप में हमने फिल किया B हियर एंड देन हमने थर्ड गैप और फोर्थ गैप में भी BB फिल किया। सो यहाँ पे भी हमने B फिल किया और यहाँ पे भी हमने B फिल किया, ठीक है। और ये सब फिल करने के बाद हमें लगा कि ठीक है, हमारा पैटर्न जो है काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड वे में है, CC, A, CC, AA, B, AA एंड देन BB, C, BB, ओके। सो this is what I have put in the missing gaps. So which option is matching? This option B. So C, B, 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 okay. So अगर मैं इस तरीके से करती और मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखता, then what would we have done? We would have moved on to कि शायद 5-5 का सेट नहीं बन रहा है, so हम शायद 3-3 का सेट जो है और आगे बना लेते, ठीक है। बट यहाँ पे बन गया, so we just got lucky, so that is nice. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू चूज़ एन अप्रोप्रिएट लेंथ, आपको बहुत छोटा भी नहीं चूज़ करना है। अगर 16 वर्ड्स हैं तो 8 का पैटर्न खुद कितना बड़ा होता है, तो थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो एक अप्रोप्रिएट लेंथ लेके चलो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर पैटर्न, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप यू गाइज आर ओके विद दिस एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, मूविंग ऑन. Okay, so this question is again, this is entirely dependent on how you say things and how you interpret things. So आपको जो question है उसकी सिर्फ statement को अच्छे से समझना है. Alright, so let's do some more questions in the from the previous year questions. Alright, okay, so this particular question was asked in CSAT 2019. सो इस प्रॉब्लम में इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको लैंग्वेज को समझना है कि क्या लिखा हुआ है एंड उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, इन दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस, 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7, ठीक है. दिस इज माई सीक्वेंस. In this sequence, how many such 5s are there which are not immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7, ठीक है. So इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो सीरीज हमने लिखी हुई है इसमें कितने ऐसे 5 हैं, how many 5s are there
which are not immediately preceded by 3. So दो टर्म्स है preceded and एक टर्म है followed. प्रेसीडेड का मतलब है कि आप जो नंबर के बारे में बात करें उससे पिछला नंबर, इमीडिएटली उससे पिछले नंबर्स, और यहाँ पे इमीडिएटली लिखा है तो मतलब उसके बिल्कुल पिछला वाला नंबर. प्रेसीडेड मीनिंग पीछे, फॉलोड मीन्स आगे, ठीक है. बट इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड का मतलब है कि अगर ये नंबर है 5, इसके एग्जैक्टली पिछला, और एक नंबर है 5, सो इसके एग्जैक्टली बाद वाला नंबर, ठीक है. सो दीज आर द टू टर्म्स विच आर इंपॉर्टेंट. सो इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड, ठीक है. सो अब मुझसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 3. सो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए. ऐसे कितने 5 है जिनके एग्जैक्टली पहले 3 नहीं है बट उनके इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, मतलब उनके इमीडिएटली बाद वी हैव 7. सो इसके इमीडिएटली बाद जो है 7 है, ठीक है. सो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे 5 ढूंढने हैं जहाँ पे उसके पहले जो नंबर है 3 नहीं है बट उसके बाद जो है उसके बाद देयर इज़ अ नंबर 7. सो वी हैव टू लुक फॉर नंबर्स जहाँ पे 3 नहीं हो और उसके पहले 5 के बाद 7 हो, ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि कितने 5 है मेरे पास, ठीक है. सो दिस इज़ 5 हियर, दिस इज़ 5 हियर एंड दिस इज़ 5 हियर, ठीक है. अब 5 कितने 5 एलिजिबल हैं इस कंडीशन में, तो पहले तो मुझे ये देखना है कि किन के पहले 3 जो है नहीं है. सो इसके पहले 3 नहीं है, सो दिस इज़ एलिजिबल. इसके पहले जो है 3 है, सो दिस इज़ नॉट एलिजिबल, राइट. एंड ये जो तीसरा 5 है मेरे पास, इसके पहले भी 3 है, सो दिस ऑल्सो लूजेज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एक एलिजिबिलिटी थी कि आपके पहले 3 नहीं होना चाहिए. अब दूसरी जो है, अब मेरे पास जो आखिरी 5 बचा है उसमें मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसके बाद इसके इमीडिएटली फॉलोड बाय, इज इट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7. सो इफ वी लुक एट व्हाट इज इमीडिएटली कमिंग आफ्टर 5, हियर आई कैन सी 7. सो only this particular 5 is such that it is not immediately preceded by 3 but it is immediately followed by 7, ठीक है. सो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही 5 है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. सो what is our correct answer here? This is my correct answer which is 1. okay. सो इसमें इट वॉज इम्पॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज. सो अगर किसी को प्रिसीडेड का मीनिंग नहीं पता है या फिर किसी को फॉलोड का मीनिंग नहीं पता है देन यू माइट हैव बीन कन्फ्यूज्ड, ठीक है. सो जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं यू शुड रिमेंबर दैट, जो कॉमनली पूछे जाते हैं. सो प्रिसीडेड मीनिंग पीछे वाला, फॉलोड मीन्स आगे वाला, ठीक है. ओके, एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड, इमीडिएटली फॉलोड, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड व्हाट इज दी व्हाट आर दी कंडीशंस है, ठीक है. सो इस तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ अलग और 2-4 कंडीशंस आपको देके इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं. बट वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कुड ईजीली डू इट. ऑल राइट, मूविंग ऑन. ओके, so this was asked in CSAT 2020. Okay, let us read it and see how will we proceed. A simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30 and 32 results in a sequence with respect to prime numbers. Which one of the following is the next number in this sequence? तो थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हो रही हैं इस क्वेश्चन में. सो एक बारी अच्छे से जो है क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं. कोई एक आपने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन किया इस सीरीज के हर एक नंबर पे, ठीक है. सो व्हाट इज दिस सीरीज दैट आई हैव? 14, 18 and then 20 and then 24 and then 30 and then 32. So this is the original series I have, ठीक है, original series. This is the original series that I have. Okay. अब हमें क्या बोला गया, इस सीरीज पे आपने कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया. मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है.
और जो आप एक नंबर पे कर रहे हो वही सारी चीज़ें आप सेम सारे के सारे नंबर्स पे करोगे, ठीक है। सो जब आपने वो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया ये हर एक टर्म पे, तो आपको एक नई जो है सीक्वेंस मिल गई। सो इस पे मैंने वो ऑपरेशन किया तो मुझे एक नंबर मिला, इस पे किया तो एक नंबर मिला, इस पे किया तो ये हर एक नंबर पे कोई एक ऑपरेशन हुआ, तो मेरे पास कुछ एक नई सीरीज़ आई रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। सो इस तरीके से एक सीरीज़ आ गई जो मेरी सीरीज़ में सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये उन्होंने पहली सीरीज़ दे दी या दूसरी सीरीज़ दे दी, बोला कि कुछ ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा है which one of the following is the next number in the sequence. So this sequence, in this sequence what is the next number, ठीक है, what is the next number in this sequence, this is what is the question. They are not asking you इस सीरीज में क्या होगा, but ये सीरीज है, इस पे एक ऑपरेशन किया तो प्राइम नंबर्स की एक सीरीज बन रही है, तो मुझे ये वाली सीरीज की जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो बताना है, ठीक है। ओके, सो अब दिस इज मोर रिलेटेड टू इंट्यूशन। अब इंट्यूटिवली मैं कैसे करूँगी, अब आप ये देखो कि 14 के आसपास, अब मुझे पता है कि ये जो मेरी नई सीरीज आएगी दिस इज रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। सो सारे नंबर्स जो होने चाहिए वो मेरे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि 14 के आसपास मेरे पास क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं। 14 के आसपास मेरे पास एक प्राइम नंबर था स्टार्टिंग विद 11, एंड देन 12 नहीं है, एंड देन 13 है, एंड देन 14 तो खुद नंबर ही है, एंड देन 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, एंड देन 17 है, ठीक है। इसके आसपास ये सारे प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास। जो नेक्स्ट टर्म है 18, इसके पहले मैं अगर देखूँ तो 17 मेरे पास एक प्राइम नंबर है और मेरे पास 18 नहीं है, एंड देन 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, 20 जो है इसके आसपास मेरे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 20 के पहले 19 इज़ माई प्राइम नंबर, राइट, एंड देन 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, फिर क्या नंबर आता है 23। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं इसमें जब मैं सिर्फ एक नंबर पीछे जाती हूँ, इफ़ आई जस्ट रिड्यूस वन फ्रॉम दीज नंबर्स, व्हाट एम आई गेटिंग। सो सपोज माई मैथमेटिकल ऑपरेशन इज़ कि आप इन नंबर्स में से 1 माइनस कर दो। सो दिस इज़ दी सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज़ बीइंग डन ऑन एवरी सिंगल मेंबर ऑफ दिस सीरीज़। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 13 नंबर आया मेरे पास, फिर यहाँ पे मेरे पास एक 17 नंबर आया, फिर मेरे पास एक 19 नंबर आया, फिर मेरे पास क्या नंबर आया 23 आया, फिर क्या आया 29 आया, फिर क्या आया 31 आया, राइट। तो मैंने क्या किया, सारे सीरीज़ में से सिर्फ एक नंबर रिड्यूस करते गए। और ये हमें कैसे पता चला, जब हमने देखा कि भाई इनके आसपास के प्राइम नंबर्स जो है इमीडिएटली पहले जो इनका पहला नंबर है वही प्राइम नंबर है। तो मैंने इस पूरी सीरीज़ में से 1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये सीरीज़ आ गई। तो अब जब मुझे ये बताना है कि अगला नंबर क्या होगा मेरी इस सीरीज़ में, तो आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा और उसमें मैं अगर सिर्फ 1 ऐड कर दूँ तो मेरा नया मेंबर आ गया, राइट। तो जो भी मेरा नया नंबर होगा उसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला प्राइम नंबर आ जाएगा, राइट। दैट इज़ द लॉजिक। तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ माई नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 भी नहीं है, फिर क्या है 37। 37 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो माई नेक्स्ट मेंबर हियर शुड बी 37। और फिर ये 37 आना कैसे चाहिए कि ये मेरी जो सीरीज़ है उसमें जो नंबर होगा उसमें से जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 37 आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए 38, राइट। सो इसका अगला मेंबर क्या होना चाहिए 38, क्योंकि 38 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 37 आएगा। तो मेरी ये वाली सीरीज़ होगी ये सारी एंटायरली प्राइम नंबर्स वाली सीरीज़ होगी, ठीक है। सो what is my answer here 38, because the next prime number would be 37 and the initial series should be 38, ताकि मैं जब 1
रिमूव करूँ देन आई कैन गेट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो लैंग्वेज वॉज सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि मेरी सीरीज़ है, फिर उस पर कुछ करके एक सीरीज़ बनानी है, वो सीरीज़ कैसी है वो मुझे पता है, तो मेरी प्रीवियस सीरीज़ का नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे वन सीरीज़ से दूसरी सीरीज़, अब बताओ कि प्रीवियस सीरीज़ का क्या मेंबर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, and if you write the series yourself once, because nothing will come to your head if you just keep staring at the series. You have to pick up your pen, you have to see what is the difference या कौन सा operation करना पड़ेगा, उस हिसाब से things will come automatically to you, okay. So I hope this is clear. All right, moving on. Okay, again this is a similar question to what we've already done. So now we know कि what should be the process, what should be the journey. So क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कितने नंबर्स जो हैं, इन टोटल मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन, मिसिंग लेटर्स जो हैं, जो जितने मिसिंग लेटर्स हैं वहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर. So how many alphabets are there? Let me count. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So मेरे पास 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब 20 को मैं अगर ब्रेक करने जाऊँ तो मैं 10 के ग्रुप्स भी बना सकती हूँ, बट 10 इज़ अ वेरी बिग नंबर। फिर मैं 5 के भी ग्रुप बना सकती हूँ, 4। सो 5, 5, 5, 5, 5 के भी 4 ग्रुप्स बना सकती हूँ, या मैं इसको और ब्रेक करना चाहूँ तो मैं 4 के 5 ग्रुप्स बना सकती हूँ। सो 4, 4, 4, 4, 4, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर क्या रहता है कि हम लोग 5 से शुरू करते हैं, हम एक रीज़नेबल नंबर जो कि सबसे बड़ा है उससे शुरू करते हैं। सो सबसे बड़ा रीज़नेबल नंबर यहाँ पे हमारे पास 5 है, क्योंकि 10 बहुत ही बड़ा हो जाता, 4 थोड़ा और छोटा हो जाता है, तो हम थोड़े रीज़नेबल लेंथ के नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया लेट्स से 5 से, ठीक है। तो एक बारी मैं सीरीज़ लिख देती हूँ। ओके, सो ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी स्टार्ट विथ। अभी हम लोग 5 के नंबर्स जो है वो ट्राई करना चाहते हैं। All right, so what is my series? What is my series? A B A B A B A B and then there is a blank, ठीक है। So ये मेरा पहला जो है पहला सीरीज बन गया। Then B, okay, let me just do that. Yeah, okay. So A B and then there is a blank and then there is B blank B C B. Okay, and then what is the next one? Next one is there is a blank in the front and then there is DC 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 and then what is the last one? I have DE D D E D. There is a blank and then there is D, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरा पैटर्न इसी सीरीज़ के अंदर मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। सो मैं क्या देख रही हूँ, सबके जो स्टार्टिंग नंबर्स हैं, स्टार्टिंग नंबर, सो क्या हो रहा है, ए बी, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट थर्ड फोर्थ नंबर जो है वो बी सी है। सो ए बी सी सी डी, तो नेचुरली मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी ई, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी रिपीटिंग। एंड में मैं क्या देख रही हूँ, ओके, सो स्टार्टिंग में, ऑल राइट, लेट मी चूज अ डिफरेंट पेन हियर। ओके, सो स्टार्टिंग लेटर्स में अगर देखूँ, हियर इज ए बी, देर इज़ अ ब्लैंक हियर, देर इज़ अ डी हियर, ठीक है। और हर एक में मैं क्या देख रही हूँ, सिर्फ 2 ही लेटर्स एक सीरीज़ में यूज़ हो रहे हैं। सो हियर ए बी सी सी डी डी ई। तो नेचुरली व्हाट इज़ माय इंस्टिंक्ट कि बिकॉज 2 ही लेटर्स एक पूरे सीरीज़ में यूज़ हो रहे हैं, सो आई शुड पुट अ सी हियर, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए है, बी है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे डी है, ठीक है। सो ए बी सी डी, दिस मेक्स सेंस। तो मेरे पास अब जो
कंप्लीटेड सीरीज है वो ये है CDCDC, ठीक है। तो अब मैं सेम लॉजिक अगर इस वाले सीरीज में अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ABABA, राइट। सो आई पुट A हियर, ऑल राइट। सो दिस इज फिल्ड अप। फिर मैं, अब मेरे पास 2 सीरीज बन गए हैं, अब मुझे पैटर्न दिख रहा है ABABA, CDCDC, सो BCBCB एंड देन DEDED, राइट। So this is the pattern that is being followed. So here and there एक भी pattern अगर आपको recognize हो गया है, more or less your series is filled up, ठीक है। So हमने यहाँ पे क्या देखा, what is the pattern? So A B C D इस तरीके से शुरुआत हो रही है हमारी सीरीज की। पहले 2 लेटर्स आप ले रहे हो, AB, then BC, then CD, then DE, ठीक है। सो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आप पिक कर रहे हो और उनकी सीरीज आपने बनाई हुई है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या फिल किया है। सो इन द फर्स्ट लेटर फर्स्ट ब्लैंक आई हैव रिटन A, सेकेंड ब्लैंक आई हैव रिटन C, थर्ड ब्लैंक आई हैव रिटन C, फोर्थ ब्लैंक आई हैव रिटन E, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज देयर, सो ऑप्शन C, ACCE, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई फिल्ड अप हियर. So the most common pattern, find the alphabets, find the number of alphabets, break it down into reasonable length of numbers, do not make it too big or too small, and then try and see the pattern. अगर इसमें pattern हमारा कोई fit भी नहीं बैठता इधर उधर करने के बाद, then we would have moved on to series of 4 के letters के set में, ठीक है. But it has worked out, so lucky for us. All right, moving on. So I hope this is clear and इस तरीके के questions आप tackle कर लोगे. Moving on. Okay, again this is similar to the problem that we discussed, that 5 is should not be immediately preceded by 3, it is immediately followed by 7. So इसमें भी what is the issue, what is the condition कि आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, अच्छे से कंडीशन समझनी है, ठीक है. सो कंडीशन क्या है एक बारी वो समझते हैं. सो व्हाट इज माय कंडीशन हियर. ओके, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस each of which is immediately followed by an odd number, ठीक है. सो इन्होंने स्पेसिफिक नहीं हुए हैं कि नंबर 3 है, 5 है, 7 है. सो इन्होंने बोला है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर. सो एक नंबर है, मान लेते हैं ये ऑड नंबर है, तो ऐसे कितने नंबर हैं कि ये एक नंबर ऑड है और इसके इमीडिएटली फॉलोड मतलब अगला, इमीडिएटली फॉलोड मतलब एग्जैक्टली नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो भी ऑड है. ऐसे कितने जो है हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर, ठीक है. और इसमें पीछे क्या हो रहा है, पिछले वाले स्टेप पे क्या हो रहा है, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट आस्क्ड टू. सो पहले तो मुझे क्या करना है कि ऐसे कितने पेयर्स ऑफ ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जिनकी इमीडिएटली बाद एक ऑड नंबर है, ठीक है. तो हमें कंडीशन समझ में आ गई है कि ऑड नंबर इस तरीके के जो है कितने ऑड नंबर्स हैं मेरे पास वो मुझे पता लगाना है, उनके पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. ऑल राइट, मूविंग टू द काउंटिंग पार्ट, ठीक है. सो ये मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज़ है. तो सबसे पहले मैं 1 by 1 स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 जिस तरीके से मेरे नंबर्स हैं. तो पहला जो मेरा नंबर है 5, इट इज़ एन ऑड नंबर, राइट. इसके इमीडिएटली बाद एक ऑड नंबर है, 1 इज़ अ ऑड नंबर. सो मेरे पास ये जो है ये एक पेयर हो गया, राइट. दिस इज़ माई फर्स्ट ऑड नंबर जिसके इमीडिएटली बाद ऑड नंबर है, ठीक है. अब मेरा दूसरा ऑड नंबर क्या है, 1. अब आई विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू 4 क्योंकि ये सिर्फ मैंने 5 के बारे में बात की है. 5 के नेक्स्ट क्या नंबर है सिर्फ मैंने वो चेक किया है, ठीक है. अब मैं देखना चाहती हूँ कि 1 के इमीडिएटली बाद ऐसा कुछ है क्या. तो 1 इज़ एन ऑड नंबर, 1 के इमीडिएटली बाद 4 है विच इज़ एन इवन नंबर, सो दिस डज नॉट काउंट. एंड देन 4 इज़, उसके बाद मेरा अगला ऑड नंबर क्या है, 7 के बाद 3 है विच इज़ एन ऑड नंबर, सो दिस फॉलोज. सो दिस इज़ माई सेकेंड सच ऑड नंबर. उसके बाद मैंने देखा 3 इज़ एन ऑड नंबर एंड देन क्या 3 के बाद इमीडिएटली बाद ऑड है, सो 3 के बाद 9 है विच इज़ ऑड, सो दिस इज़ ऑल्सो सच ऑड नंबर. फिर 9 के बाद क्या है, 9 के बाद इवन है, सो दिस डज नॉट काउंट. फिर मेरा अगला नंबर क्या है, 5 जिसके बाद ऑड नंबर है, सो दिस काउंट्स, राइट. फिर 7 के बाद इवन है, सो दिस डज नॉट काउंट. 6 एंड देन 3 के इमीडिएटली बाद 1 है,
So this is one pair, and then 1 के immediately बाद 5 है, this is another pair. Okay, and then 5 के immediately बाद 8 है, so this does not count. So 6, and then 3 के immediately बाद 8 है, does not count. 5 के बाद 2 है, does not count. 2, 4, 6, 4, 9, 6. So ये मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है. तो मुझे कितने पेयर्स ऐसे मिले, कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिनके इमीडिएटली बाद एक ऑड नंबर है. सो आई विल जस्ट काउंट दीज डैशेस दैट आई हैव मेड हियर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आई हैव 6 सच ऑड नंबर्स जिनके इमीडिएटली बाद एक ऑड नंबर है. ठीक है. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिस्टेक हो सकती है आपसे, वो ये है कि जब आप इसको काउंट कर रहे हो 5 और 1 को, तो आप कई बार बच्चे 1 को भूल जाते हैं. ठीक है, कि मुझे इसको भी देखना था, या फिर 3 को देखा तो फिर अगले स्टेप पे चले गए और इस 3 को काउंट नहीं किया. ओवरलैप को भी आपने काउंट करना है. ठीक है. So this is the only mistake that can happen here. Rest, if you understand the language, you are fine. ठीक है. So there are 6 such odd numbers which are immediately followed by a odd number. ठीक है. I hope this is clear. So हमने इस तरीके के problems भी देख लिए जहाँ पे सिर्फ हमें statement समझनी है. एक अल्फ़ाबेट रिलेटेड पैटर्न भी समझ लिया जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके आगे बढ़ना है. फिर मिसिंग टर्म्स को भी देख लिया है जहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट वी हैव टू सी द डिफरेंस एंड देन प्रोसीड. ठीक है. सो दीज आर 3-4 types of questions that you could expect. All right. Okay, so this is all that I would want to discuss with you regarding this topic. So there are no questions, no concepts here, but you have to apply logic here. So और ये सारे प्रॉब्लम्स को करने के लिए इट विल बी गुड इफ़ यू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि क्यूब काफ़ी सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कुछ नेचुरल नंबर्स के क्यूब आपको पता हो, कुछ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर आपको पता हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं. सो दिस इज़ मोर और लेस ऑल्सो रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम. So it will help you if you have that understanding. So I will see you in the next lecture with another topic. So thank you so much and take care.